نامنظور نامنظور، بڑھتی قیمتیں نامنظور، بڑھتی قیمتیں نامنظور۔ ہماری تنظیم میں ایک بڑی جمہوریت بات ہے کہ ہمارے بڑے کوئی تو بات کہتے ہیں، ہم اس کا پیرا بھی دیکھتے ہیں، اسے آگے کی کوشش کرتے ہیں، قائل کر لیں یا قائل ہو جائیں۔ انجمن تاجران قائد اعظم گروپ اور انجمن تاجران بادامی باغ گروپ اور تمام جتنے بھی ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پرانے فاؤنڈر کے ساتھی ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ان کو بتایا کرتا ہوں کہ وہ دروگا والا میں نے گور میں بیکرز ہے، اس کے فلور کے اوپر انہوں نے ہماری ایک آئی ٹی کی تھی۔ جب الیکشن ہار گئے ہم 2024 کا، اس کے بعد فاؤنڈر نے بالکل ایکٹیویٹی ختم کر دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مارکیٹ میں ہم وزٹ کریں اور وہاں کے اگر جہاں کے لیڈر ہم نے بنا دیے وائس چیئرمین یا پریزیڈنٹ وغیرہ وہ بھی ہم ان کو بنا سکیں تاکہ وہ روٹ لیول تک لوگوں سے کانٹیکٹ کہ جس میں سے 12,000 ویوز آئے تھے کہ میاں وقار صاحب کو فاؤنڈر میں انہوں نے، یعنی کہ ان تو تھے لیکن وہ دوبارہ سے یعنی کہ انہوں نے اپنی آپ نے ہم سب کی قائد اعظم گروپ کے ساتھیوں کی اپنے بات کو میاں یوسف صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے دوست ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، سارے دوست جو بدائی باغ سے اخلاق ہیں، عمیر ہیں، سب دوست آئے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ جو سلامت پورے سے آئے ہیں، منشا صاحب وغیرہ آئے ہیں، سب دوست جو قائد اعظم گروپ کے آئے ہیں، انصاری صاحب، سب سے مل کے سالک بیٹھے ہیں، بہت خوشی ہوئی ہے، بہت اچھا لگا ہے جی۔ میں نے کرونا کے دنوں میں بھی ان کو دیکھا ہے جب پورے پاکستان کی مارکیٹیں بند تھیں، سوائے بدائی باغ کے کوئی مارکیٹ نہیں کھلی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان کی خدمات، ان کا آنا جانا، ان کے تعلقات جو ہیں وہ قابل ستائش جتنے بھی ووٹر نے سارے میاں صاحب کے نال نے اور فاؤنڈر صاحب کے نال تے اس کو علاوہ اسی سے نہیں کرتے، جو میاں صاحب لے کے چلتے ہیں اس کے مطابق اسی چلتے ہیں۔ شیخ صاحب کا اور وقار صاحب کا بڑا مشکور ہوں جو انہوں نے انوائٹ کیا۔ ابھی تک مجھے کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے، لیکن جو میں نے ابھی 2-4 منٹ میں سمجھا تو وقار صاحب شاید تھوڑا سا پیچھے ہو گئے ہوں گے ایک اسٹیپ، اور آپ لوگوں نے ایک اسٹیپ آگے کیا، یہی میں سمجھ پایا۔
کہ ہم ملکی حالات جب خراب ہوں، کاروبار نہ ہو، تو کم از کم تاجر ایک پلیٹ فارم پہ ہو. کیونکہ جب میں پورے پاکستان میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ اختلاف رائے رکھنا، ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ چلے جانا، دوسرے میں کسی کو یہاں پر خبر نہیں کر رہا، لیکن جو میرے ذہن میں ایک ریئلٹی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پہ چلے جانا، دوسرے سے تیسرے پہ آ جانا، لیکن تمام تاجروں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. صرف الیکشن جب ہوتا تھا اس سے چند دن پہلے آ جاتے تھے اور چند دن پہلے آ کے سب لوگوں سے مل کے ووٹوں بھی نہیں کرتے تھے. ان کو اس وقت ووٹوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ لوگ گھر مطلب خود ہی ماشاء اللہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ ان کو ضرورت نہیں. اور پھر ہوا کیا کہ چند ایک ایسے بھی لوگ ان میں آئے جنہوں نے آ کے جو بہت زیادہ مخلص لوگ تھے ان کو اگنور کیا. کہ ایک وقار احمد میاں کے لیے پورے لاہور کی مارکیٹس یہاں پہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ وہ محبت ہے وقار احمد میاں کی جو آج یہاں پہ فاؤنڈرز کے آفس میں ہم سب کو کھینچ لائی ہے. پہلے تو فاؤنڈر اور پیاف کٹھے سارے پیسے تے اس وقت تک سانو سمجھ نہیں آ سکی کہ اسی کس جگہ کھڑے. ظاہر ہے کہ اسی ایک گروپ نو پورے نو سپورٹ کرتے پے سی الیکشن جا کے. جس جب گروپ کی ڈیوائڈیشن ہوئی تو پھر سانو پتہ چلا اسی کون آتے کتنے کھڑے ہیں. اگر میں فاؤنڈر ہوں تو وہ میاں وقار کی وجہ سے. ایک بڑے بھائی ہیں تو ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہوا ہے کہ اگر کسی کو بڑا مان لو نا تو پھر مان ہی لو. شیخ نے مچاتی ہلچل ہلچل، شیخ نے مچاتی ہلچل ہلچل، شیخ نے مچاتی ہلچل ہلچل، شیخ نے مچاتی ہلچل ہلچل. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. فاؤنڈر کو دوبارہ عزت اس سینس میں کہ فاؤنڈر کے ساتھ اپنی دوستی، اپنا تعلق بحال کر کے میاں وقار سے زیادہ فاؤنڈر کو عزت ملی ہوگی انشاءاللہ. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں دیکھیں جو گھر ہوتا ہے اس میں بڑے اور چھوٹے، ابھی وسیم بھائی نے بہت خوبصورت بات کی، اس میں بڑے اور چھوٹے سب موجود ہوتے ہیں. ہمارے اس طبقے میں تاجر برادری میں نہ صرف کاروباری طور پہ بڑے اور چھوٹے ہیں، ہم عمروں میں بھی بڑے اور چھوٹے ہیں، تجربوں میں بھی بڑے اور چھوٹے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میاں وقار صاحب مستقبل میں شفقت والا رول ادا کرتے ہوئے فاؤنڈر کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر ہمارا ساتھ دیں. 12 جنوری 2026 کو فلیٹیز ہوٹل میں مجھے ایز اے چیئرمین اناؤنس کیا گیا. اس چیئرمین اناؤنسمنٹ سے پہلے کچھ بھائیوں نے، کیونکہ چیئرمین کی بات چیت تو چل رہی تھی، آفیشیل اناؤنسمنٹ 12 جنوری کو ہوئی، اس سے پہلے کچھ بھائیوں نے مجھے چیئرمین وہ دلوں سے، اور جب ایک اندر کی بات چیت تھی اس کے کہا کہ جی ہم تمہارے ساتھ. اس میں سب سے زیادہ جو شکر گزار ہوں وہ میرے دروگا والا انڈسٹریل آنر ایسوسیشن ہے. یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے جس محبت کے ساتھ اس دن سے لے کے آج تک میرا ساتھ دیا، میرے کندھے کے ساتھ کندھا لگایا، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میرے سے آگے چل کے میرے لیے راستے ہموار کیے. میں دل کی گہرائیوں سے منشا صاحب، طارق صاحب، رمیش صاحب، عاصم صاحب، ایک ایک بھائی کا دل سے شکر گزار ہوں جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک. ادھر میرے بھائی بیٹھے ہیں ڈوگر صاحب، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے بائیں کھول کے ملے. اویس پراچا، یہ اس کی میں تعریف زیادہ نہیں کروں گا، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس کو صرف یہی کہتا ہوں یہ بھائی میرا ہے، مشوق یہ میاں صاحب کیونکہ یہ میرے ساتھ بھائی کا رول بھی نبھاتا ہے، لیکن جب زیادہ محبت کرنی ہوتی ہے تو میاں صاحب کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہ اب اس کا آج یہ شکوہ میرے خیال میں ختم کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں دے. جی فاؤنڈر نے
یہ جو سفر شروع کیا ہے تبدیلی کا، محمود صاحب یہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں بھائی جان کا، انہوں نے گروپ نے اور میں منشا صاحب، انیس صاحب اور طارق صاحب کا دوبارہ سے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے یہ بھائی کو ہمارے ساتھ جوڑنے میں۔ حاجی اکرم صاحب بیٹھے ہیں، میں کس کا نام لوں، مجھے اللہ نے سارے ہی ہیرے دے دیے اور یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ شاید اسے کہیں نہ کہیں میری نیت کا میرے رب کو میرے سے بھی بہتر علم ہے کہ میں کسی کے لیے اچھا ہی سوچنا چاہتا ہوں اور اچھا ہی کرنا چاہتا ہوں، اور وقت آئے گا۔ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ 3 سال کی چیئرمین شپ ہے اور میرا اللہ مجھے اس قابل بنائے کہ میں عزت سے بھرا میلہ چھوڑ کے چیئرمین شپ آگے جاؤں، تا یاد اوور والا میرے پہ اللہ میاں وہ لیبل نہ لگوائے، اللہ تعالیٰ وہ وقت ضرور لے گا۔ اچھا سر، جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے فاؤنڈر میں ایک ری اسٹرکچرنگ کا پہلو بنایا، اس میں ہمارے چیئرمین، میں چیئرمین تھا، میرے ساتھ سینئر وائس چیئرمین، اور یہ ہم گراس روٹ لیول تک چلے۔ ہم گراس روٹ لیول میں جا رہے ہیں تو وائس چیئرمین کے ساتھ ہم نے پریزیڈنٹس بنائے۔ میں نے ابھی سارے نام لیے، میں نے ایک شخص کا نام نہیں لیا، وہ پریزیڈنٹ ہے نام کا۔ گمپت روڈ پہ مجھے وہ لے کے گئے اور میں نے جو ان کی خوبصورت ورکنگ وہاں دیکھی، ابھی میں نعیم بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا ساتھ والے کمرے میں اور مجھے وہ فوراً یاد آئے، میں نے انہیں بلایا۔ جو نعیم بھائی چاہ رہے تھے، انہوں نے پرپوز کیا، حافظ عرفان صاحب نے وہ عملاً کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے وہ قدم اٹھایا ہے، ہم 2-4 دن میں اپنے بھائی کے پاس، ڈوگر صاحب کے پاس اردو بازار جا رہے ہیں۔ ہماری ریکویسٹ ہے ایز اے چیئرمین، نہ ڈھول چاہیے، نہ پھول چاہیے، نہ بگیاں چاہیے، نہ ہمیں کوئی تماشے چاہیے۔ ہم نے ووٹر کے پاس جانا ہے، ہم نے اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آگے جانا ہے۔ ہمارے صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک ووٹر کے پاس جانا، اس کو اس کا مسئلہ سننا، اور دوسرا جہاں تک ہمارا اختیار ہو ہم اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے جدوجہد کریں۔ ہمارے پاس فاؤنڈر کے پاس نہ تیسرا راستہ ہے، نہ تیسری سوچ ہے، نہ کوئی تیسرا عمل ہونا چاہیے۔ ہمارے صرف 2 ہی عمل ہیں، نہ ہمیں بگیاں چاہیے، نہ ہم اپنے دکاندار بھائیوں کا، نہ ان کا کوئی پیسہ ان چیزوں پہ ضائع نہیں کرانا چاہتے، نہ میری کوئی خواہش ہے۔ میں آپ سے آج درخواست کروں گا، ایک شخص ابھی بیٹھا ہے میرے ساتھ، صرف 7-8 منٹ ہم بیٹھے ہیں نعیم بھائی، 79 مارکیٹیں، اور کتنے آپ نے بتایا سر، 400 کتنا ووٹ ہے آپ کے ان مارکیٹوں میں؟ 2263 ووٹ۔ نہیں بھائی، ذرا یہ بات بڑی سوچنے والی ہے۔ ایک شخص نہیں، 79 مارکیٹیں اور 2200 ووٹ۔ میں نے ان سے پوچھا، ابھی بات ہوئی، ہم نے کہا ہم 79 مارکیٹوں میں ایک ریپرزینٹیٹیو بنائے تو 79 بندے ہمیں ملتے ہیں، ہمیں 79 ووٹ ملتا ہے، اور ان 2200 میں 79 والے صرف 50-50 ووٹ لے آئیں، تو کیا ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہے؟ یہ عمل ہمارا عمل نہیں ہوئے گا، یہ ہمارے بھائی حافظ عرفان جیسے بھائیوں کا، ڈوگر صاحب جیسے، نعیم صاحب جیسے، عاقب بھائی بلال گنج سے بیٹھے ہیں، برانتر روڈ سے بیٹھے ہیں، ٹی ٹی والے اور دروگا والے سے بیٹھے ہیں، یہ ہر بھائی کا عمل ہوئے گا، بادامی باغ کا عمل ہوئے گا۔ ہم ایک بندے پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، ٹکٹ ایسے نہیں دی جائے گی کہ میں ویٹو کر دوں گا۔ انشاءاللہ میں آج یہ بات پھر دوبارہ سے کہتا ہوں، ہم ٹکٹیں دیں گے، اجتماعی طور پہ بیٹھ کے دیں گے، میاں وقار میرے ساتھ بیٹھا ہوگا، جب ہم فیصلہ کریں گے ہم میرٹ میں کریں گے، ہم اس مارکیٹ کے لوگوں سے، اس مارکیٹ کے جو وائس چیئرمین جس کو بنا رہے ہیں، جس کو ہم پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں، جس کو ہم سینئر وائس چیئرمین بنائیں گے، اس سے مشاورت سے دیں گے کہ بھائی تمہاری مارکیٹ میں یہ بندہ ہے، تمہیں قبول ہے یا تم کسی اور کی طرف جانا چاہتے ہو تو ہمیں وہ بھی بتاؤ، اس کی مارکیٹ میں کیا ورتھ ہے، برانتھر روڈ پہ کون بیٹھا ہے، بادامی باغ میں کون بیٹھا ہے، بلال گنج، کیونکہ 16 کینڈیڈیٹ ہیں ایسوسیٹ کے اور 16 کینڈیڈیٹ ہوں گے کارپوریٹ کے، تو 16 کینڈیڈیٹ بادامی باغ کا بندہ ہے تو اس نے بادامی باغ سے ووٹ نہیں لینا باس، اس نے ہر لاہور کے ایک ایک خطے سے ایک ایک دکاندار سے
वो जौहर टाउन में भी वोटर बैठा है तो उसके पास भी जाना पड़ेगा, उसका ग्रीन टाउन में भी बैठा है तो जाना पड़ेगा, उसका बदामी बाग में भी है, उसका मुगलपुरे में भी है, उसका गढ़ी चाव में भी है, हर इलाके में उसने जाना है। उसकी क्या है वर्थ, वो आप लोग फैसला करेंगे। मलिक नईम साहब जैसे दोस्त फैसला करेंगे, वसीम भाई जैसे दोस्त फैसला करेंगे, हाफिज साहब जैसे दोस्त, डोगर साहब जैसे दोस्त, महमूद साहब जैसे, मंशा साहब, ये सारे फैसला करेंगे। आई हैव नो राइट टू वीटो एनीवन। मेरा कोई वीटो नहीं, मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारा इज्तिमाई कैंडिडेट होंगे और हम इंशाअल्लाह ताला, मैं नहीं हम जीतेंगे। वी आर टुगेदर मेक अ डिफरेंस इंशाअल्लाह। सिंगल वन कोई वक़्त नहीं। मैं एक बात कहता होता हूँ कि कल्ला बंदा अपनी कब्रें नहीं पै सकता, उन्हें भी 4 मोटे चाहिए, नहीं तो वो मार जाएगा। उसको आखिरी वक्त पे जाने के लिए भी, अपनी मंजिल आखिरी पे जाने के लिए भी 4 साथी चाहिए। और मैं खुश नसीब हूँ कि आज ये 50 दोस्तों के पीछे कई हज़ार दोस्त मेरा साथी बैठा है। मेरे लिए आज फ़ख्र का दिन कम और शुक्र का दिन ज़्यादा है कि मियाँ वकार भी माना, इसके साथ मेरे साथ सारा लाहौर खड़ा हो गया। और इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले वक्त के लिए बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ एक वादा करता कि मेरा भाई अगर मेरे से नाराज़ होगा तो वो मेरी कुताही होगी और मैं फिर दोबारा मनाने के लिए भी जाऊँगा। और छोटा भाई बड़े भाई से हमेशा सीखने के लिए रहेगा और बड़ा भाई भी दस्ते शफ़क़त रखेगा और सिखाएगा इंशाअल्लाह। बाकी बहुत सारी बातें हैं। मेंबरशिप एक हमने नई ड्राइव शुरू करनी है वोट के साथ साथ, क्योंकि 30 जून तक हम जो वोटर बना लेंगे वो 2028 में हमारे बहुत काम आएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जहां हम 2026 का इलेक्शन देख रहे हैं, आज हम एक इयादा करें लाहौर की। मेरे ख्याल में हर दूसरी बड़ी मार्केट से बंदे मौजूद हैं, जो नहीं हैं वो भी जाके पैगाम पहुंचा देंगे दोस्त अहबाब एक दूसरे को। हमें कम से कम 5 से 6 हज़ार मेंबरशिप अगले 2 महीने में उठानी चाहिए। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं और इसका पूरा डाटा बनाने के लिए हमारे पास इधर दफ्तर पूरा मौजूद है, ये यहाँ पे आप मीटिंग करें, आप यहाँ ऑफिस के नंबर्स मौजूद हैं, 3 बंदे मौजूद हैं। आपने सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि जी हमारे इतने लोग हैं, हम चाय पे आना चाहते हैं, हमारे इतने लोग हैं, हम खाने पे आना चाहते हैं। बाकी इंतज़ाम हमारी इंतज़ामिया, फाउंडर का सेक्रेटरी आपके साथ बैठा होगा, आपके मिनट्स बताएगा, आप अगली मीटिंग का बताएंगे, वो कॉल करेंगे, वो आपका ग्रुप बनेगा, कंप्यूटर पे चलेगा, आपके मिनट्स महफूज होंगे, आप जिस बंदे के जिसमें जो काम लगाएंगे वो वैसे ही हो रहा होगा। हम आपको अगली दफ़ा जब आप आके बैठेंगे आपकी फ़ाइल आपके आगे रख देंगे कि सर आपने ये काम पिछली दफ़ा मीटिंग छोड़ के गए थे, यहाँ से अब आपने पूछना है डू और नॉट, ये करके आए हो कि नहीं करके आए। तो इंशाअल्लाह ताला हम सिर्फ बातों पे नहीं, अमली तौर पे भी आपको जगह, स्टाफ, हर चीज़ मुहैया कर रहे हैं। ये एक खुला मेरा आपके लिए है। हम दफ्तर हमारा नहीं है, फाउंडर का नहीं है, ये आप सबका दफ्तर है। यहाँ पे सिर्फ बताइए, नंबर मौजूद है। दोबारा मैं अपने तो किधर गए हैं दो सालिक भाई और फ़हीम भाई, ग्रुपों में ये वाली बात बना के कि जी अपने तमाम ये जो हमारे दोस्त हैं इनके नंबर सबके हैं, वो मार्केट ग्रुप में ऐड करें, वहाँ पे चलाएं, ताकि जिसने मीटिंग करनी है बुलाना है वो चाय पे, खाने पे यहाँ दस्तयाब है, वो बुलाएं। हमारी तरफ से दरवाजे बिल्कुल खुलें और ये नई मेंबरशिप के साथ ज़रूर ड्राइव करें। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, जो आज सिर्फ मियाँ वकार नहीं आया, मैंने पहले कहा है कि लाहौर आया, तो इंशाअल्लाह ताला मैं तो रखता हूँ कि जैसे आज भाई का मैंने हाथ पकड़ा है, भाई दूसरे हाथ के साथ मेरे साथ जो पुराने दोस्त नाराज़ होके छोड़ के फाउंडर किसी भी वजह से, हम उनका भी हाथ पकड़ के वापस बहुत सारों के साथ चल रही है बात, बहुत सारे हैं। ये शख्सियत ऐसी है कि जब बात करेगी तो मेरी बात से भी ज़्यादा असर करेगा। अल्लाह ताला हम सब को नेक नियति के साथ
दिलो जान के साथ ताजिर बरादरी की हकीकी मानों में खिदमत करने का हौसला दे, हमसे कोई काम ऐसा ले ले कि हम जब अपने अपने वक़्त पे बैठ के सोचे तो हम ये तो कहने के काबिल हों कि ये एक लाइन अल्लाह ने मेरे हिस्से में भी दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मियाँ वक़ार का बहुत। मेरी इंतहाई गुजारिश यही है कि तेरे नाम से खुदा कर रहा यार, जितनी आप लोगों ने मुझे महान देवता या कुछ बना दिया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप जैसा बंदा हुए एवं मियाँ वकार, मियाँ वकार, हर बंदा मियाँ वकार है, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे मियाँ वकार है। ज़िंदगी को जिस तरह मैंने गुजारा है अपने बड़ों को देख के, मैं अपने साथियों को भी ये कहता होता हूँ कि आप ज़िंदगी इस तरह गुजारें। मेरे साथी कायद ग्रुप के हों, मेरे साथी अंजमन ताजरान बदामी बाग के हों, मैं उनको ये कहता हूँ कि यार मुझे ये चीज़ विरसे में मिली है। जिस तरह बार बार कहा गया जी सारा लाहौर इकट्ठा हो गया, शेख साहब ने आखिरी बात कही कि कल्ला बंदा तो मर के भी उन 4 बंदे की जरूरत है। मेरे वाले साहब एक बात कहा करते थे कि शेर का बट्टा होंगे ना, अपना बदन कोई नहीं गा, उन 16 छटाका ने मिल के शेर बनाया है। अगर एक छटाक उसमें निकाल देना, वो शेर नहीं रह जाता, वो 15 छटाक रह जाता। आप कोई भी बंदा किसी भी मनसब पे बैठा है तो वो एक छटाकों के साथ मिलकर शेर बन के बैठा हुआ है। अगर वो अकेला कहेगी मैं पहलवाना न थे, कुछ नहीं, क्योंकि मेरी घुट्टी में, मेरे खून में चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जिन्हें मैं निकाल नहीं सका और निकाल सकूंगा भी नहीं। अब उम्र के इस हिस्से में हूँ। अंजमन ताजरान लाहौर, बहुत से लोगों को इल्म नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इल्म में इजाफा कर दूँ। अंजमन ताजरान लाहौर मेरे वालिद मोहतरम मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब ने बना के हाजी मकसूद भट्ट साहब के सपोर्ट की थी और उनको सदर बनाया था। हाजी मकसूद भट्ट साहब के ऊपर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। उन्होंने ताजरों के लिए बहुत काम किया, ताजरों को इकट्ठा किया। आज नहीं इकट्ठे हो रहे ताजर, ना होंगे, क्योंकि मैं ये कहता होता हूँ कि हड्डियाँ बन चुकी हैं। अंजमन ताजरान मेरे लिए माँ का दर्जा रखती है। मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ कि मुशर्रफ दौर में कौमी ताजर इत्तेहाद बनी, मुझे भी बुलाया गया, मुझे नोटिफिकेशन दिया गया। मैंने कभी उसका सर्कुलर नहीं निकाला था, क्योंकि मेरे बाप का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ अंजमन ताजरान के साथ। मैं कौमी ताजर इत्तेहाद को क्या करूँ। इसी तरह जब मैंने होश संभाली, आँख खोली, तो मेरे वालिद साहब को मलिक शफ़ी मरहूम साहब ने बुलाया। मलिक शफ़ी मरहूम साहब ने घाट फिल्टर के इफ्तार मलिक साहब के वालिद मोहतरम, उन्हें कहा यार मैं बच्चे को सियासत करानी है तो इन चैम्बर लैके जा। ये 78 की बात है। कितने साल हो गए जी? 78, 79, 80, 46, 48 साल। 48 साल पहले मैं लाहौर चैम्बर का मेंबर बना बजरी अपने वालिद साहब। और 48 साल में मैंने अपने, एक बच्चा होता है, आपके भी बच्चे हैं माशाल्लाह सारे ही, एक बच्चा अपने वालिदैन के करीब होता है। मुझे अल्लाह ने ये शर्फ दिया हुआ कि मैं अपने वालिदैन के करीब रहा हूँ। और 78 से लेके आज तक, क्योंकि फाउंडर मेरा वालिद, मेरा फाउंडर था अल्लाह के बाद, मेरा बनाने वाला अल्लाह के बाद मेरा वालिद था। फाउंडर मेरे लिए बाप का दर्जा रखता है। फाउंडर से बहुत लोग नाराज़ होकर चले गए, बहुत लोगों ने फाउंडर छोड़ भी दिया माजरत के साथ। एक वक्त में शेख साहब ने भी छोड़ दिया, हाजी अकरम साहब ने भी छोड़ दिया, खादम साहब ने भी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पास जो लोग आते थे ना, मैं कहता था मैं फाउंडर में बैठा हुआ हूँ, मेरे को तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को लेके बैठा हुआ हूँ। और तहफ़्फ़ुज़ात अगर मैं पब्लिक में मुझे इजाज़त दी जाए, मैं कहूँ, लोगों को पता है, बहुत से लोगों को पता है, मैं क्लियरली कहता हूँ कि जहाँ पे वो बंदा होगा मैं नहीं आऊँगा, मुझे अकेले बुलाओ, मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। राव साहब को ऐसे झूठ से नहीं कह रहे हैं। ये मेरा भाई वसीम बैठा हुआ, इसने मुझे पिछले दिन दावत दी खाने की। एक गाड़ी खड़ी हुई आके, उसका ड्राइवर मुझे मिला, मैं बाहर खड़ा होके, मैं और मेरा भाई था साथ, उमैर सिगरेट पीने लगा। वसीम साहब के ध्यान पड़ गया, ये भाग गया। मैं कहा यार वो बंदा एक गया, मैं तो वापस चल गया था। उन्होंने कहा छोड़ो तुसी मेरे नाल आओ, इन्हें मैं जाके दफ्तर ही बिठाता। बात यह है कि ज़िंदगी गुजारने, हर बंदे के ना किसी जगह पे ऐसी चीज़ होती है कि उसको नापसंद होती है, और बहुत सी चीज़ें पसंद होती हैं। नापसंद को पसंद बनाना मेरे नज़दीक तो नहीं, आपको कर सकते हो तो कर लें। जैसे उन्होंने कहा जी कि लोग छोड़ जाते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने 2 बातें आपको बता दी। अंजुमन ताजरान में हूँ तो मैं अपने बाप की वजह से, फाउंडर में हूँ तो अपने बाप की वजह से, और उसके बाद आज मैं सलूट करता हूँ उस शख्स को कि जिसने हमेशा मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के चला है, उसका नाम है इफ्तिखार अली मलिक, जो कि ट्रेड पॉलिटिक्स का गॉड फादर भी है। और मैं वो क्या कहते हैं जी उसको, जो बहुत बड़ा किंग कॉन्ग होता है, किंग कॉन्ग है वो। जब फाउंडर ने अलायंस तोड़ा, मलिक साहब नाराज़ हुए, मुझे पता है। आज वो किसी से नहीं मिलते। मुझे आज भी चलने से पहले, घर से निकलने से पहले उनकी कॉल आई है, क्या कर रहे हो? मैं कि तैयारी कर रहे हैं। कादी मैं कहा जी शेख इब्राहिम साहब ने फाउंडर के दफ्तर से खाना किया है ये आगे सुन के मैं कहा जी बिल्कुल फाउंडर को की। मैं कहा जी चलो जाओ फिर मैंने आगे रिपोर्ट देनी है, तो रिपोर्ट अच्छी दूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छी बात बुरी बात करनी चाहिए बंदे को। जहाँ तक फाउंडर में इज़्ज़त की बात की गई है, मेरा ख्याल है कि मेरे भाई हाजी अकरम साहब बैठे हैं, शेख साहब बैठे हैं, अवैस प्राचा बैठा है, जो कि फाउंडर में थे मेरे साथ, जितनी रिस्पेक्ट फाउंडर ने मुझे दिया किसी बंदे को नहीं मिली। अगर मैं गलत हूँ तो ये तीनों कह सकते हैं। नजम साहब भी बैठे हैं यहाँ पे। एक दफ़ा मेरा इनका किसी मसले पे इख्तलाफ हो गया, लेकिन आज भी प्यार है उनके साथ। मैंने हमेशा फाउंडर को मजबूत करने के लिए, मैं एक लफ्ज़ बोलता होता हूँ, उसने बोला था कि मैं मार्केट फिरता था, गोहरे नायाब तलाश करता था, ए बंदा इस काबिल है, वो मैं लिस्ट बना लिया करता था। फिर हम 3 बंदे बैठ के उस लिस्ट को सॉर्ट आउट करते थे, क्योंकि हमारे पास जाती थी 4 टिकटें अलाइंस में, 4 हमारे अलाइंस को जाती थी, 4 हमारी होती थी, और 4 बंदे 99.9% मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर होते थे। वो ओके करते थे, मलिक इफ्तिखार साहब भी और शेख आसिफ साहब भी। और शेख आसिफ साहब का मैं गायबाना बता दूं, वो सियासी बात जो भी हो, उन्होंने मेरी हमेशा इज़्ज़त किया। उन्होंने मुझे पब्लिकली खड़े होकर कहा कि ये मेरा उस्ताद है। फिर उन्होंने डिफ़ाइन किया कि मेरा उस्ताद क्यों है, क्यों। इसको मैं बैस प्रत्ये का पूछूंगा कि कहेगा अब्बे का नाम है, मेरे दादे का नाम है, मेरे ताए का नाम है, इन्हें सारा पता है। ये चीज़ें मेहनत से हासिल होती हैं। एक बंदा कहता है कि जी मैं शॉर्टकट में चले जाऊँ, वो नहीं होता। आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी है। इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश करूँगा कि इज़्ज़त ही दूँ, और मैंने दी है सारी ज़िंदगी। कोई बंदा इस हाल में ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी से तू तरह की हो। हमेशा छोटों से शफ़क़त के साथ, बड़ों से मोहब्बत के साथ, और मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ, सीखने के अमल से हूँ। ये नहीं कि मैं कोई चौधरी बन गया हूँ, नहीं। एक चीज़ पल्ले बांधी हुई है कि खिदमत करनी है। खिदमत वो किसी भी जगह पे आप कर सकते हो। सियासत आज तजारत बन चुकी है, लेकिन मेरे नज़दीक सियासत जो है वो खिदमत का नाम है। उस वो मेरे पास मुख्तलिफ प्लेटफार्म है, इस पर क्या जिक्र करना है। अवैस भाई ने छोटा सा कहा, पूरी दुनिया बंद थी कोविड के दौरान, मैं भी घर बैठा हुआ था। मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया, गवर्नमेंट ने कुछ 40-45 शोबे खोलने का ऐलान किया। मैंने उसको जब पढ़ा तो उसमें ना लिखा हुआ था ट्रैक्टर पार्ट्स और वर्कशॉप और ज़रूरी आलात। मैंने उनको डिफ़ाइन करवाया, अकेला नोटिफिकेशन निकलवा के मैंने उसकी कॉपीज़ मीडिया हाउसेस को और इलाका SHO DSP को भेजी। मैंने कहा यार इसकी रोशनी मुझे बताएं कि हम मार्केट खोल सकते हैं। तीसरे दिन मैंने सुहेल साहब से जिक्र किया। मैंने कहा सुहेल साहब ज़रा मार्केट आ जाना। सिटी 42 भी आ गया सर्वे करने के लिए। SHO की मुझे कॉल आई, मेरे से मार्केट खोल रहे हो। मैं कहा यार मैं तो माड़ा जहा बंदा अजान देनी है, जो सुन के नमाज़ पढ़ना आ गया ठीक है। उन्होंने कहा खोलो, सारी मार्केट खुल सकती है। और वाहिद मार्केट थी, ये ब्रांथ रोड से बैठे हैं, ब्रांथ रोड भी ज़राई आलात के हवाले से खुल सकती थी, लेकिन वहाँ के अंजुमन ताजरान ने प्रेशर नहीं लिया। हमारी मार्केट थ्रू आउट खुली रही है। मुझे नहीं किसी से गर्द के मैं जाते हूँ यार की वटेल या मैंने भी हिस्सा दे दो। सिर्फ ये कोशिश की है खिदमत हो जाए, खिदमत हो जाए। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि खिदमत के अमल के ऊपर तवज्जो दें। फाउंडर हो, अंजुमन ताजरान हो, किसी जगह पर राह चलते, और ये जो बात कही है ना कि 79 मार्केटें और 500 वोट से 2200 वोट, हम ये कहते होते हैं जब इलेक्शन होता है हर बंदे का, मतलब सुहेल साहब हैं, ये अकेले वोट नहीं है, इनके जेब में 5 वोट हैं। 5 वोट किस तरह, कोई इनका कस्टमर वोटर होगा,
कोई इनका वेंडर वोटर होगा, कोई इनका रिश्तेदार वोटर होगा, ये 5 वोट हैं। अगर आप इस तरह के चंद 100 बंदे इकट्ठे कर लें तो वो वोट आपके हैं। लेकिन क्योंकि हालात आगे बड़े सख्त मुझे नज़र आ रहे हैं, मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ, सारे नालों वड्डा ही होवांगा शायद, मैं लोग भी कहते होंगे, लेकिन मेरे जो साथी हैं, मेरे साथी पीछे बैठे हैं, उमैर साहब हैं, वैस साहब हैं, अखलाक साहब बैठे हैं पीछे, ये सारे जो हैं ये मेहनती लोग हैं। मैं अपनी मार्केट की बात करूँ, हमारी मार्केट में आज तक कोई दूसरी ग्रुप वोट नहीं लेके जा सका, क्योंकि लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुआ है पिछला, उसमें मैं थोड़ा सा स्लो था। मैंने मलक उस्मान को कहा जा यार जो होता कर ला, वो दोस्तों को लेकर गया वोट। लेकिन जब ये साथी मेरे निकलेंगे, ये इंशाल्लाह ताला, ये चूँकि फाउंडर के वोट से ही इब्तदा हुई थी ऑटो मार्केटिंग, मैंने मलक इफ्तिखार साहब का हवाला दिया है। 78 में फाउंडर ही था सिर्फ, ये प्याबाद में बनी अली अलबियाबाद, वो तो अकेला फाउंडर होता था। तो फाउंडर के लिए जो वोट बने हैं, नसीर अकबर साहब बैठे हैं, इनके वालिद साहब मेरा ख्याल में 80s के दौर में जब जाया करते थे कंपेन में, तो मलक साहब कहते यार इन्होंने मिलना, अकबर साहब को मिलना है। ये उस वक्त भी फाउंडर के वोटर थे, आज भी वो तीसरी नस्ल भी फाउंडर के वोटर है। तो फाउंडर का वोटर कहीं नहीं जाता, फाउंडर का वोटर दिखता नहीं है। और ख़ास तौर पर मैं अपनी मार्केट की बात करूँ तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। कोई दावे करे मैं नहीं कर देंगे, वो दावे जो है ना वो पिछले साल इलेक्शन में आपने देख लिए कि जिनका सदारती कैंडिडेट भी नहीं जीत सका अपने वोट, वो क्या दावे करेंगे। लेकिन हम दावे नहीं करते, हम काम करते हैं, राब्ते में रहते हैं और अपने वोटर के साथ, अपने सपोर्टर के साथ, अपने दोस्तों के साथ राब्ते में रहें और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। इब्राहिम साहब आपका शुक्रिया। मेरी यहाँ पे काजल ग्रुप के सदर अंसारी साहब बैठे हैं, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि इन्होंने बड़ी पेन ली, सालक ने बड़ी पेन ली, मलक मानस साहब इस वक्त दुबई में हैं, उन्होंने बड़ी पेन ली। इन साथियों ने मुझे जिच कर दिया, हालांकि मलक इजाज साहब मैं भी साहब फंसी हो जाना यार। हालांकि मैं एक दोस्तों को बात क्या करता था कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो ट्रेड पॉलिटिक्स की है, ख़ास तौर पर लाहौर चैम्बर के बारे में, वो अपने वालिद मियाँ यूसुफ साहब और इफ्तिखार मलक की वजह से की है। क्योंकि इफ्तिखार मलक साहब किनारा कशी कर गए हैं, यार मैं भी किनारा कशी कर गया, लेकिन मैं फाउंडर हूँ, फाउंडर था, फाउंडर हूँ, फाउंडर ही मरूँगा। ये नहीं बात कि मैं बदल जाऊँगा किसी के कहने के ऊपर। मेरा शायद पहले जो बात की है कि फाउंडर ने जितनी मुझे रिस्पेक्ट दी और ख़ास तौर पे फार्मर प्रेसिडेंट्स ने, मैंने पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय किया जी फार्मर प्रेसिडेंट का, मुझे इसमें कोई कहने में आर नहीं है। और मेरे दोस्तों ने, मेरी कोशिश ये होती थी कि यार दोस्तों को ना आगे बढ़ाया जाए। और जो आपने कहा ना 4 साल पहले हो जाता, मैं पिछले 10 साल से लगा हुआ था। मैंने रिटर्न लिख के भेजे कि अपनी सेकंड ईयर को साथ बैठाया करें, इनको सीखने का मौका दें। लेकिन जब वो क्या कहते हैं, पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत, अगर उस वक़्त ये बात मान लेते, जो पैटर्न आज इब्राहिम साहब लेके चले हैं, आज अकरम साहब ने मुझे बताया कि मैं 2-4 जगह से गल की थी, ये पैटर्न मैंने लिख के दिया था, राव साहब गवाह है इस चीज़ के। इन्होंने बल्कि मुझे लो जी सारे तैयार थे, फिर तुसी लै गए, तो फिर इन्हों के पल्ले की रहा, ये भी एक गल हुई थी। लेकिन आज ज़रूरत पड़ी है, अगर ये 1 साल पहले दोस्त इस फार्मूले पे अमल कर लेते, जो साथी छोड़ के गए हैं वो भी नहीं जाते, वो भी नहीं जाते। लेकिन जो है, जो बचे हैं संग समेट लो। अल्लाह ताला आपकी सबकी ज़िंदगी रखे, सेहत तंदुरुस्ती रखे, क्योंकि 10 बजे हाल का टाइम ख़त्म हो जाना है। सही नहीं कह रहे, 10 बजे हाल का टाइम खत्म हो जाना है। तो मैं अपनी तकरीर, आपका सबका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है। इंशाल्लाह ताला मिल के चलेंगे, जो भी हो सका वो करेंगे। बहुत शुक्रिया।